हम पढ़ेंगे जरमिया 29 चैप्टर और 30 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्जन में से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, इन वचन के भेद हम समझ सके, क्योंकि इसी के अंदर से हम जीवन जी पाएंगे। हमारी शक्ति का खजाना पवित्र वचन का समझना है। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दीजिए, हमें काबिलियत दीजिए तेरे वचन को ग्रहण करके उसमें चलने के लिए विश्वास रखते हुए नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Jeremiah's letter of advice to the captives in Babylon. He foretells the fearful end of Ahab and Zedekiah and Shemaiah's doom. First verse. Now these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem unto the residue of the elders which were carried away captives, and to the priests, and to the prophets, and to all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon. After that, Jeconiah the king and the queen and the eunuchs, the princes of Judah and Jerusalem, and the carpenters and the smiths were departed from Jerusalem by the hand of Elasah the son of Shaphan, and Gemariah the son of Hilkiah, whom Zedekiah king of Judah sent unto Babylon to Nebuchadnezzar king of Babylon, saying, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, unto all that are carried away captives, whom I have caused to be carried away from Jerusalem unto Babylon. Build ye houses and dwell in them, and plant gardens and eat the fruit of them. Take ye wives and beget sons and daughters, and take wives of your sons and give your daughters to husbands, that they may bear sons and daughters, that ye may be increased there and not diminished. And seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it, for in the peace thereof shall ye have peace. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, let not your prophets and your diviners that be in the midst of you deceive you, neither hearken to your dreams which ye cause to be dreamed. For they prophesy falsely unto you in my name. I have not sent them, saith the Lord. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you, in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. And I will be found of you, saith the Lord. And I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places whither I have driven you, saith the Lord. And I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. Because ye have said, The Lord hath raised us up prophets in Babylon.
Know that thus saith the Lord of the King that sitteth upon the throne of David and of all the people that dwelleth in this city. And of your brethren that are not gone forth with you into captivity. Thus saith the Lord of hosts, Behold, I will send upon them the sword, the famine, and the pestilence, and will make them like wild figs that cannot be eaten, they are so evil. And I will persecute them with the sword, with the famine, and with the pestilence, and will deliver them to be removed to all the kingdoms of the earth, to be a curse and an astonishment and an hissing and a reproach among all the nations whither I have driven them, because they have not hearkened to my words, saith the Lord, which I sent unto them by my servants the prophets, rising up early and sending them. But ye would not hear, saith the Lord. 20 verse से आगे, Hear ye therefore the word of the Lord, all ye of the captivity whom I have sent from Jerusalem to Babylon. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, of Ahab the son of Kolahiah, and of Zedekiah the son of Maaseiah, which prophesy a lie unto you in my name. Behold, I will deliver them into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and he shall slay them before your eyes. And of them shall be taken up a curse by all the captivity of Judah which are in Babylon, saying, The Lord make thee like Zedekiah and like Ahab. Whom the king of Babylon roasted in the fire, because they have committed villainy in Israel, and have committed adultery with their neighbors' wives, and have spoken lying words in my name, which I have not commanded them. Even I know and am a witness, saith the Lord. Thus shalt thou also speak to Shemaiah the Nehelamite, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, the God of Israel, saying, Because thou hast sent letters in thy name unto all the people that are at Jerusalem, and to Zephaniah the son of Maaseiah the priest, and to all the priests, saying, The Lord hath made thee priest in the stead of Jehoiada the priest, that ye should be officers in the house of the Lord. For every man that is mad and maketh himself a prophet, that thou shouldest put him in prison and in the stocks. Now therefore, why hast thou not reproved Jeremiah of Anathoth, which maketh himself a prophet to you? For therefore he sent unto us in Babylon, saying, This captivity is long, build ye houses and dwell in them, and plant gardens and eat the fruit of them. And Zephaniah the priest read this letter in the ears of Jeremiah the prophet. Then came the word of the Lord unto Jeremiah, saying, Send to all them of the captivity, saying, Thus saith the Lord concerning Shemaiah the Nehelamite, because that Shemaiah hath prophesied unto you, and I sent him not, and he caused you to trust in a lie. Therefore thus saith the Lord, Behold,
I will punish Shemaiah the Nehelamite, and his seed. He shall not have a man to dwell among this people, neither shall he behold the good that I will do for my people, saith the Lord, because he had taught rebellion against the Lord. Chapter 30. The Jews' deliverance. Jacob comforted, their ancient privileges restored. The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, Thus speaketh the Lord God of Israel, saying, Write thee all the words that I have spoken unto thee in a book. For lo, the days come, saith the Lord, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, saith the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. And these are the words that the Lord spake concerning Israel and concerning Judah. For thus saith the Lord, we have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace. Ask ye now and see whether a man doeth travel with child. Wherefore do I see every man with his hands on his loins, as a woman in travel, and all faces are turned into paleness. Alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. For it shall come to pass in that day, saith the Lord of hosts, that I will break his yoke from off thy neck, and will burst thy bonds, and strangers shall no more serve themselves of him, but they shall serve the Lord their God, and David their king, whom I will raise up unto them. Therefore fear thou not, O my servant Jacob, saith the Lord, neither be dismayed, O Israel. For lo, I will save thee from afar, and thy seed from the land of their captivity. And Jacob shall return, and shall be in rest, and be quiet, and none shall make him afraid. For I am with thee, saith the Lord, to save thee, though I make a full end of all nations, whither I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee, but I will correct thee in measure, and will not leave thee altogether unpunished. For thus saith the Lord, thy bruise is incurable, and thy wound is grievous. There is none to plead thy cause, that thou mayest be bound up. Thou hast no healing medicines. All thy lovers have forgotten thee. They seek thee not, for I have wounded thee with the wound of an enemy, with the chastisement of a cruel one, for the multitude of thine iniquity, because thy sins were increased. Why criest thou for thine affliction? Thy sorrow is incurable for the multitude of thine iniquity. Because thy sins were increased, I have done these things unto thee. Therefore all they that devour thee shall be devoured, and all thine adversaries, every one of them, shall go into captivity, and they that spoil thee shall be a spoil, and all that prey upon thee will I give for a prey. For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord. Because they called thee an outcast, saying, This is Zion, whom no man seeketh after. Thus saith the Lord, Behold, I will bring again the captivity of Jacob's tents, and have mercy on his dwelling places, and the city shall be builded upon her own
hip, and the palace shall remain after the manner thereof, and out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry, and I will multiply them. And they shall not be few, I will also glorify them, and they shall not be small. Their children also shall be as aforetime, and their congregation shall be established before me, and I will punish all that oppress them. And their nobles shall be of themselves, and their governor shall proceed from the midst of them. And I will cause him to draw near, and he shall approach unto me. For who is this that engaged his heart to approach unto me, saith the Lord? And ye shall be my people, and I will be your God. Behold, the whirlwind of the Lord goeth forth with fury, a continuing whirlwind. It shall fall with pain upon the head of the wicked. The fierce anger of the Lord shall not return until he hath done it, and until he have performed the intents of his heart. In the later days ye shall consider it. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय 30 अध्याय हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से हिंदी में। मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी 29 अध्याय पहले वचन से। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यह कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हे बड़े मगर तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है मेरी नदी मेरी नीज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है। देखो कैसे घमंड रहता है फिरौन का। मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा, और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझको तेरी नदियों में से निकालूंगा। ये हो गया हमारा वॉरफेयर प्रेयर का डायलॉग। ठीक है, ये वर्ड है हमारे मुंह में हमेशा रहना चाहिए। ओके, शैतान के सारे जल जो मछलियां हैं जल के, उसमें शैतान को आंकड़े लगा और उसके नदियों की मछलियों को के खाल को शैतानी कामों में चिपटा दे। उसकी खाल चिपटी हुई उसके नदियों के सब मछलियों समेत उसे निकाल दे, उसके नदियों में से निकाल दे उसको। ये हो जाता है वॉरफेयर में हमारा रिजल्ट आने का रास्ता। ठीक है, अब 5 वचन से आगे। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा। कभी जंगल में गए हैं क्या? मछली पानी में रहती है ना। परमेश्वर बोल रहा है तेरा जगह बदल दूंगा। जो पानी के अंदर तू अपना ताकत समझ रहा है, अब मैं उसमें से निकाल कर तुझे जंगल में भेज दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। ये तरह से होता है जब हमें छल होता है, जब आप बताते हैं ना कमेंट्स में कि आपके साथ कैसे छल हो रहा है। ये तरीके से पहले उनके कुछ चीज़ें होती है जो वो करके रखते हैं, इसकी वजह से फिर छल का असर आपके शरीर पर होने लगता है। 6 वचन। लेकिन आप अगर ये वचन 4, 5, 6 वचन आप यूज़ करेंगे उन शक्तियों को ख़त्म करने के लिए, तो वो कामयाब हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे शक्तियाँ। ठीक है, 6 वचन। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे तो इस्राएल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरे थे। जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया तब तो टूट गया
और उनके कंधे उखड़ ही गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई तब तू टूट गया और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं तुझ पर तलवार चलवा कर तेरे मनुष्य और पशु सबों को नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तूने कहा है, मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया। इस कारण देख, मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूँ और मिस्र देश को मिग्दोल से लेकर सवेने तक वरन कुश देश की सीमा तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य या पशु का पाँव तक न पड़ेगा और न उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खंडहर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच में इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तितर बितर हुए, और मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में जो उनकी जन्मभूमि है फिर पहुंच जाऊंगा, और वहां उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह सब राज्यों में छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे जाति जाति पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे। वह फिर इस्राएल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगे तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। राजा नबूकदनेस्सर मिस्र को पराजित करेगा। 17 वचन से आगे। फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर को घेरने में अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हर एक का सिर गंजा हो गया और हर एक के कंधों का चमड़ा छिल गया, तो भी उसको सोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और न उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूटकर अपना कर लेगा। अतः यही मजदूरी उसकी सेना की को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उसी समय मैं इस्राएल के घराने का एक सींग उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आप परमेश्वर से इस प्रकार से मांग सकते हैं 21 वचन के आधार से, परमेश्वर मेरे लिए एक सींग उगा और मेरे शत्रुओं के बीच में उसका मुंह खोल और बता दे कि तू मेरा परमेश्वर है। ओके, ये प्रार्थना आप कर सकते हैं। वॉरफेयर में आप परमेश्वर से ये मांग सकते हैं 21 वचन को। परमेश्वर मिस्र को दंड देगा। 30 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, भविष्यद्वाणी करके कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर, क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है। वह बादलों का दिन और जातियों के दंड का समय होगा। मिस्र में तलवार चलेगी और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेंगे तब कुश में भी संकट पड़ेगा।
लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे और उसकी नींवें उलट दी जाएगी। कूश, पूत, लूद और सब दो गले और कुब लोग और वाचा बांधे हुए देश के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे और अपनी जिस सामर्थ पर मिस्री फूलते हैं वह टूटेगी। मिगदोल से लेकर सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े ठहरेंगे और उनके नगर खंडहर किए हुए नगरों में गिने जाएंगे। जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब सहायक नष्ट होंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। उस समय मेरे सामने से दूत जहाजों पर चढ़कर निडर निकलेंगे और कुशियों को डराएंगे और उन पर ऐसा संकट पड़ेगा जैसा कि मिस्र के दंड के समय, क्योंकि देख वह दिन आता है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से स्थिर मिस्र की भीड़ भाड़ का नाश करा दूंगा। वह अपनी प्रजा समेत जो सब जातियों में भयानक है उस देश का नाश करने को पहुंचाया जाएगा और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मरे हुओं में से भर देंगे। मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड़ कर दूंगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं नोप में से मूर्तों का नाश करूंगा और उसमें की मूर्तों को रहने न दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। ये ऐसे वचनों को आप अपने शत्रुओं के ऊपर, परेशान करने वालों के ऊपर यूज कर सकते हैं इसको। ओके, ये वेपन्स है परमेश्वर का, इनविजिबल वेपन्स है जिसके बारे में चर्चाओं में कोई बोलता नहीं है। ओके, प्रचार में कोई बोलता नहीं है। ये हथियार परमेश्वर इस्तेमाल करता है। सदोम गमोरा के ऊपर परमेश्वर ने कौन सा हथियार उपयोग किया था? हाँ, जो बर्फ के पत्थर होते हैं और आग के गोले होते हैं। हाँ, स्वर्गदूत उतर कर आए थे उसको नाश करने के लिए, समझा। और स्वर्गदूत का समय ठहराया गया था, कौन से समय में वो नाश करना है, समझा। तो इसके लिए समय के पहले लूत को हाथ पकड़कर स्वर्गदूत खींचते हुए उस नगर के बाहर ढकेल दिया और दौड़ाया, दूर भाग यहाँ से, जहाँ वो छुपने का स्थान तुझे दिखता है वहां तक चला जा, ताकि ये नाश होते समय तू उसके अंदर पकड़ा ना जाए और हम दोषी ना ठहरे, समझा। तो परमेश्वर का तरीका शत्रु के साथ फाइट करने का कोई प्रचारक आपको प्रचार करके नहीं सिखाता है। ये आपको, हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ के समझ के उसमें से उठा के हमने उस हथियार का इस्तेमाल करना है, समझा। तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोई परेशान कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, या फिर आप ये सोचेंगे बस परमेश्वर तो मेरी सुनता नहीं है। किसने बोला सुनता नहीं है? ये कैसे है फिर परमेश्वर के वर्णन किए जा रहे कि वो कैसे कैसे शत्रुओं को, इस्राएल के विरोध में आने वालों को परेशानी में डाल रहा था, कैसे कर रहा था? क्या वो इस्राएल का इस्तेमाल कर रहा था? नहीं, वो अपने तरीके यूज कर रहा था। वो नदियों को सुखा रहा था, वो उनके शक्तियों के पानी को सुखा रहा था, उस शक्तियों के ठिकाने उनका नदी था तो वो नदी को सुखा रहा था, उसके अंदर के मछलियों को सुखा रहा था, उसका डेरा मगर के समान है तो उसको निकाल कर वो जंगलों में डाल रहा था। कितना कुछ ऐसा परमेश्वर का हथियार है जो हम वचन पढ़ के ही मालूम कर सकते हैं। परमेश्वर को मनुष्य की जरूरत नहीं है फाइट करने के लिए, समझा। हम परमेश्वर को मांग सकते हैं, तुझे मेरी जरूरत नहीं है, तू अपने तरीके से भी मेरे शत्रु को हैंडल कर सकता है। अब मैं विनती करती हूँ तुझसे, तू हैंडल कर, मेरी प्रार्थना है तुझसे, नासरी यीशु के नाम में, आमीन। अब देखना फिर उसका कैसा इंतजाम लग जाता है।
ये मत सोचो कि आप शत्रु के लिए खाना बनाकर दे दिए गए हैं, वो चबा चबा कर आपको परेशान करता जाए, ऐसा नहीं है। ओके, 14 वचन से आगे, मैं पत्रोस को उजाड़ूंगा और सोवन में आग लगाऊंगा और नो को दंड दूंगा। सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है, उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा। अब किसको मालूम था? इस्राएल को मालूम था क्या ये बात? यहोवा ने जिसको देखा, हाँ, इस्राएल को थोड़ी मालूम था कि नोप में से मूर्ति है जो उनको परेशान कर रही है। इस्राएल को नहीं मालूम था। ओके, कुछ ऐसा पानी है जिसके अंदर मगर के समान वो मिस्र का फिरौन काम कर रहा है। ओके, ये नहीं मालूम था इस्राएल को। परमेश्वर को मालूम है आपके सीक्रेट्स, जो लोग आपको सता रहे हैं उनके सीक्रेट प्लेसेस क्या क्या है, परमेश्वर को पता है। और उसके ऊपर अटैक करना आप और मैं नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर खुद निकलता है वहाँ अटैक करने के लिए। समझा? आपने मांगना है बाइबल को पढ़ के, परमेश्वर तो अपनी ओर से अटैक कर हमारे लिए, ठीक है। 15 वचन से आगे, सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है, उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा। नो को भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा, नो की भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा। मैं मिस्र में आग लगाऊंगा, सीन बहुत थरथराएगा और नो फाड़ा जाएगा और नोप के विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे। हाँ? अभी ये सारा चीज परमेश्वर ने प्लान किया है, इस्राएल ने नहीं किया है। ये सब इस्राएल को पता भी नहीं है परमेश्वर ने कौन से ठिकानों को और किन किन लोगों को टारगेट कर लिया है। ओके, आपके सामने मनुष्य जब आपका विरोध ही रहता है तो मनुष्य के पीछे जो चल रहा होता है उसको टारगेट हमारा परमेश्वर करता है। समझ में आया? तो आप इस प्रकार के वचनों को उठाकर परमेश्वर से विनती में मांग सकते हैं कि अब तुझे कुछ करने की ज़रूरत है, मुझसे तो नहीं होगा, तू कुछ करने की ज़रूरत है अभी। ओके, आवेन और पीवेसेत का जवान तलवार से गिरेंगे और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। जब मैं मिस्रियों के जुओं को तहे पनाहेस में तोड़ूंगा, तब उसमें दिन को अंधेरा होगा और उसकी सामर्थ्य जिस पर वह फूलता है वह नष्ट हो जाएगी। देखो, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ परमेश्वर दिन को अंधेरा करने का क्यों बात कर रहा है। क्योंकि उस दिन के अंदर जो शक्ति है, उसकी ताकत के ऊपर ये मिस्री घमंड करते थे। मैंने कल ही आपको वचन पढ़ते समय बोला ना कि हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन अन्य जातियों में रोज के रोज उनके शक्तियों का दिन रहता है, प्रहर रहता है, समय रहता है, ऋतु रहता है, बहुत कुछ रहता है, अलग 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 शक्तियों का। हाँ, उसी दिन, उसी समय, उसी प्रहर में उस शक्ति का वो लोगों को जो करना है वो उसका लाभ लेते हैं। ओके, नहीं तो फिर उनको अगले समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि वो उस समय आ जाए, तभी वो जाके अपना काम निपट लेते हैं। समझा? तो परमेश्वर कहता है तेरी ताकत जो तू दिखा रहा है वो कहाँ पर है? दिन में है, दिन, डे में है। ओके, और परमेश्वर कह रहा है उसमें दिन को अंधेरा होगा, यानी जो समय का वो लोग फायदा उठाते। आपको पता है ना, यहोशू ने सूरज को ढलने नहीं दिया। क्यों ढलने नहीं दिया? क्योंकि इस्राएल को विरोध करने वाला जो युद्ध में था, वो युद्ध का ताकत जो यूज कर रहा था विरोधी, वो अंधेरे के समय में था। ओके, इसके लिए अंधेरे के अंदर यहोशुआ जाना नहीं चाहता था। ठीक है, यहोशुआ उनको ताकत में फूलने नहीं देना है, ये ध्यान रखते हुए वो अंधेरा होने ही नहीं दे रहा था। ओके, अंधेरा नहीं हुआ और युद्ध चलता गया, ताकत नहीं मिली विरोधियों को और वो विरोधी हार गए। ओके, तो परमेश्वर ये लोगों के ताकत के ठिकाने यहाँ वचन में से हमको दिखाता है, कैसे परमेश्वर कौन से ठिकाने को कैसा टारगेट करके क्यों वो अंधेरा करने जा रहा है। क्योंकि उसके अंदर क्या है? वो शत्रु की, मिस्र की सामर्थ है।
जिसके कारण वो अपनी घमंड लेकर चलता है। बस कितना आसान है आपके विरोधियों को निपटना। ओके, ये सीक्रेट, ये भेद पवित्र आत्मा के अलावा हमको नहीं मालूम पड़ता है। इसके लिए हमको अकेले में बैठकर वचन को सीखना पड़ता है, ताकि ये एरिया ऑफ लाइफ है जब लोगों को नहीं मालूम है तो उनके अंदर अज्ञानता उनके नाश का कारण बन जाता है। ठीक है, नहीं तो शत्रु को हराना बहुत आसान है अगर आप सही ढंग से पवित्र आत्मा से सीखेंगे वचनों को, तो वह नष्ट हो जाएगी, उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेटियां बंधुआई में चली जाएगी। इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मिस्र के राजा की टूटी हुई शक्ति। 20 वचन से आगे, फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है, और देख, न तो वह जोड़ी गई, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूँ और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। हाँ, अब उसकी भुजाएं कौन है? हाँ, उसके पास तलवार कहाँ से है? समझ में आ रहा है आपको? तो मिस्र का देश, आप सिर्फ मिस्र के बादशाह को ऐसे ही देख रहे फिरौन को, ठीक है, लेकिन उसकी ताकत के ठिकाने आपको मालूम नहीं रहेगा तो वो तो आपको हराएगा ही हराएगा। उसकी ताकत के ठिकाने परमेश्वर बता रहा है, उसकी ताकतें भुजाओं में है। हाँ, तो अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ेगा परमेश्वर, और उसके तलवार, उसके पास तलवार है जो उसकी ताकत है। हाँ, उसको गिरा दूंगा। तो उसको गिरा दूंगा मतलब तलवार आराम से रखी हुई नहीं है, तलवार खड़ी है, तैयारी में है और अटैक के लिए रखी गई है। ओके, तो ऐसा परमेश्वर आत्मिक एरिया ऑफ लाइफ का पूरा हमको बयां करके बताता है, क्या क्या चीज़ें, कैसे चीज़ें, ये चीज़ें नाम दिया है लेकिन वो असल में आत्माएं हैं, शक्तियां हैं वो। ओके, उसको गिरा देगा परमेश्वर, और तभी फिरौन क्या हो जाएगा? फिर हार जाएगा। हाँ, मैं देखिए आगे बढ़िए, 23 वचन क्या है? मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर पितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। मैं बेबीलोन के राजा के भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा। यानी परमेश्वर के पास की तलवार है। आपको हमको भी पता है, परमेश्वर का वचन पौलुस बताता है, प्रेरित पौलुस, आत्मा की तलवार। तो आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन, लेकिन नाम क्या लिया? तलवार। किसकी तलवार? आत्मा की। मतलब आत्मा की है, मतलब आत्मा के हाथ में परमेश्वर का तलवार है। अब कोई इंसान सोचेगा तो सोचेगा हाथ में किसी ने तो अच्छी खासी तलवार लेके खड़ा है, ऐसा नहीं। क्या है वो? परमेश्वर का वचन। किसके पास है? आत्मा का, आत्मा के पास है। समझ में आया? तो आत्मा के पास क्या है? परमेश्वर का वचन है, जिसको क्या कहा गया है? तलवार कहा गया है। झिलम, धार्मिकता की झिलम पहलो। क्या है? प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, जो हमको पता है, हमने उसको धारण कर लिया है, हमने अपने आप में कबूल कर लिया है कि हम धर्मी है। ओके, उसको कहना है कि पहन लिया हमने। ठीक है, तो आपको ये सारे समझ आना चाहिए कि ये किस प्रकार के हथियार की बातें हो रही है। मैं मिस्रियों की जाति जाति में तितर पितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, वरन फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसा मरने वाला घायल कराहता है। आपको पता है शाऊल को पौल बनाया, तो शाऊल के हाथ में कौन सी तलवार थी? मसीहों का विरोध करने की, उनकी मार काटे कर देने की, उनकी कलसिया खत्म करने की। परमेश्वर ने क्या किया? उसके तलवार को गिरा दिया और अपनी तलवार उसके हाथ में दी। कौन सी? सुसमाचार फैलाने का। ओके, उसके वचनों का तलवार मिल गया उसको। ओके, मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेगी।
तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। देखा, फाइट किसने किया? यहोवा ने, है ना। तो फाइट किस में था? बेबीलोन में था और फिरौन में था। हाँ, अब बेबीलोन को बचाने के लिए परमेश्वर ने कैसे कैसे चालें चली, आपको अभी सब वचनों में से मैंने बताया। परमेश्वर ने चालें चली। बेबीलोन को तो पता भी नहीं है, बेबीलोन के बादशाह को इसके बारे में मालूम जानकारी भी नहीं है, हाँ, कि फिरौन की ताकतें कहाँ कहाँ है। उसके साथ परमेश्वर निपटा। हालेलुया। इसके लिए हम बोलते हैं दुष्ट का अंत निश्चित होता है। ठीक है, जब मैं बेबीलोन के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा, और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। हर बार परमेश्वर अपने आप को दिखाने के लिए रास्ता लेता है हमारे शत्रुओं के साथ फाइट करने में, क्योंकि हमारे शत्रुओं के पास जो शक्तियां हैं वो हम लोगों को बता रहे होते हैं, हाँ हम है कुछ तो, हम है कुछ तो फिर हम अपने अंदर से कुछ बता नहीं पाते हैं। इसके लिए परमेश्वर को मालूम है कि अच्छा तू मेरे लोगों को बता रहा है, तू बहुत कुछ है, ठीक है, अब मैं तुझे बताता हूँ तेरा कहाँ कहाँ क्या क्या ठिकाना है। सब तुड़वा कर रखता है परमेश्वर, और फिर लोग मसीह में आ जाते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार के शक्तियाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। हमको सिर्फ उसकी जानकारी ना होने की वजह से हम फालतू के बकवादी में पड़ जाते हैं। हम मरने की भाषा कर लेते हैं, हाँ, निराशा की भाषा कर लेते हैं, दुख की भाषा कर लेते हैं, कितना कुछ हम अपने आप को घायल कर देते हैं नेगेटिव वर्ड्स से, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं है। अरे आप क्या जानेंगे? बेबीलोन भी नहीं जान रहा था, बेबीलोन का बादशाह भी नहीं जान रहा था कि फिरौन, मिस्र का फिरौन कैसे उसके साथ विरोध कर रहा है, कौन सी शक्तियाँ यूज कर रहा है, उसको भी नहीं मालूम था। ओके, परमेश्वर को मालूम है आपका विरोधी कौन है। आपने परमेश्वर के हाथ में अपने युद्ध को देना है और जीवन आगे जीने का रास्ता पकड़ना है माय फ्रेंड। ओके, बाकी बकवादी में नहीं जाना है। आपने अपने लाइफ को घायल अवस्था में बनाए रखने के लिए आपने समय नहीं लगाना है। ओके, हम 2 साल के अंत में देखेंगे, 2 साल के बाइबल रीडिंग में देखेंगे क्या वचन है आज। पवित्र आत्मा, आपको हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने हमें हियाव दिया, हमें मरने के रास्तों में से छुड़ाने का रास्ता दिया, आगे जाने का रास्ता दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर तेरे वचनों में, और हमें हियाव दे, विश्वास दे आगे बढ़ने के लिए। ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आ, नासरी यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। टू इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 8 चैप्टर 22 वर्स से 32 वर्स, 2 किंग्स 21 चैप्टर 22 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 22 वचन से 32 वचन तक। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय 22 अध्याय। हम अब आपको पता चला अकेले में क्यों बैठ के वचन पढ़ना है। अज्ञानता निकल जाती है हमारी। कौन निकाल देता है? पवित्र आत्मा निकाल देता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो अब ये अज्ञानता निकल गई तो आप शत्रु के ऊपर प्रबल होते जाएंगे। आपको जीवन जीना मजेदार लगेगा, क्योंकि विक्ट्री के ऊपर विक्ट्री, जीत के ऊपर जीत आप हासिल करते हुए जाएंगे। हालेलुया। तो मायूस नहीं होना है, हताश नहीं होना है। अकेले में बैठकर पवित्र आत्मा के संगति में समय लगाकर परमेश्वर के वचनों को, ये 2 साल के बाइबल रीडिंग को पढ़ना है, और हम देखना है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें उसकी रचना में तैयारी के साथ उपयोग करने के लिए लेगा। हालेलुया। और निश्चित हमने पवित्र आत्मा से ये लाभ उठाना है इस समय का, और अनुग्रह का आत्मा वही कारण से हम में रहता है कि हमें वो सिखाए परमेश्वर के भेद रहस्य को, और शत्रु के सामने हमें जिताए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बना रहे, हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा, तेरे वचनों के भेद रहस्य हमें और ज्यादा गहरे से हमें सिखा, अज्ञानता निकाल दे, शत्रु का बल हमारे ऊपर से टूट जाएगा, ऐसा रास्ता हमको चला। हम पर परमेश्वर की दया और ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम अपनी जीत को हासिल कर लेंगे, जबकि हमको पता भी नहीं शत्रु की ताकतें कहाँ कहाँ हैं। मेरा परमेश्वर वो ताकत
तोड़ेगा और हमको शत्रु के हाथों से छुड़ाएगा। ये तसल्ली हमारे जीवन में आने दे, हमें आगे बढ़ने के रास्ते खोल कर दे, हमारे मन को सीधाई के रास्ते दे, खराई के रास्ते दे और शुद्ध जीवन जीने वाला हमें आज्ञा पालन चला। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना में हमको, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।